Good morning, class. In the last lecture, we are studied so many formulas like a logarithmic, exponential, then a inverse, then a trigonometric inverse function also, then substitution method means हम substitute करने के बाद substitute कैसे करने का substitute कैसे करना ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. Now in this lecture we are start new formula. So वो आज हम लर्न करेंगे और बाय हार्ट करेंगे. So let's start. So in this lecture we are learn a geometrically mean or of a derivative slope gradient. So now in this lecture we are about a gradient. So हम gradient को कैसे फाइंड करते हैं और स्लोप को वो देखेंगे. स्लोप मीन्स हमको मालूम है दैट इज़ m. सो ग्रेडियंट को कैसे फाइंड करते हैं. वी नो दैट डिफरेंट हमको एक इक्वेशन दिया होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद एक हमको पॉइंट दिया रहेगा, मीन्स एक वैल्यू दी होगी, वो वैल्यू हम उधर पुट करने के बाद हमको ग्रेडियंट मिलता है, मीन्स स्लोप मिलेगा. मीन्स इन दिस वे m मीन्स स्लोप मीन्स क्या हो गया, वो f डैश ऑफ a मीन्स फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन x की वैल्यू रहेगी कुछ a, सो वी पुट f डैश ऑफ a. सो वो हो गया हमारा ग्रेडियंट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x. और ऑल्सो फाइंडिंग स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व, वी नो दैट two lines are perpendicular each other. This slope is m1 line, this is line 1 and this is line 2. So this line 1 slope is m1 and this is line 2 slope is m2. Okay, suppose line 1 slope is m1 and line 2 is m2. So we know that this अगर वो perpendicular रहेगा, so m1 and m2, so here m1 multiply by m2, so they gives -1 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको आंसर क्या मिलेगा, -1. सो ये हमने ऑलरेडी लर्न किया इन सेमेस्टर 1 में. सो m1 मल्टीप्लाई बाय m2, सो दे गिव्स -1 मीन्स क्या मिलेगा, m1 इज इक्वल टू -1 बाय m2 मीन्स m1 इज इक्वल टू 1 बाय m2. So here same slope of the normal at p is equal to a f of a, so they use -1 divided by slope of the tangent p a f of a. so वही फॉर्मूले इधर हम यूज़ करेंगे. slope of the norm at is x is equal to a on y is equal to f of x, so they use -1 divided by f dash of a. तो ये दोनों फॉर्मूले हम लर्न करेंगे. तो फर्स्ट फाइंड क्या करेंगे, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व. फर्स्ट हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम स्लोप फाइंड करेंगे. मीन्स ग्रेडियंट मीन्स स्लोप ही है वो, मीन्स हम m फाइंड करेंगे यार. सो फर्स्ट जो गिवन है वो लिखेंगे. सो गिवन y इज इक्वल टू √x क्यूब. नाउ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, so they use dy by dx is equal to 1 by 2 under root x cube मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वेयर. क्योंकि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट एक्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो दे यूज 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स, देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x को, सो दे यूज 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर. सो दे यूज 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स. Now the geometrically dy by dx represent the gradient of the curve at any point on it. So the gradient of the curve at x is equal to 4. So gradient at point x is equal to 4. So put in equation number 2. So 3 multiplied by 4 square divided by 2 under root 4 cube. So they gives 3 multiplied by 16 divided by 2 under root 64. That 64 is a 8 square, that is 64. So under root 8 square, so under root and square get cancelled, so only remain is 8. So 8 multiplied by 2 and 60 multiplied by 3, so they give
3. So वो क्या हो गया हमारा 3 इज अ स्लोप मीन्स m मीन्स स्लोप मीन्स वो ग्रेडियंट. So the gradient of the curve at x is equal to 4 is m is equal to 3. So in this way we can find the gradient and slope. Now in this method also we are finding the point means interaction point. So one curve and one line are intersect with each other. So वो point भी हमको फाइंड करने के लिए बोलते हैं. So वो देखते हैं. वो भी हमने वो सम भी हमने लेक्चर में लिया, उसको सॉल्व किया, पॉइंट्स फाइंड किए. Find the point on the curve y is equal to x square minus 6x plus 8 where the tangent is parallel to x-axis. Now here tangent is a parallel to the x-axis means this is x-axis, वो tangent क्या है parallel to the x-axis. Here given y is equal to x square minus 6x plus 8. So equation number 1. Now differentiating with respect to x, so they gives dy by dx is equal to here 2x, then here only 6, or this is constant, so differentiation is 0. Now geometrically slope of the tangent is dy by dx 2x minus 6, so they gives 2x minus 6. हो गया हमारा slope of the tangent. Now the tangent is parallel to the x-axis. Slope of the x-axis is 0. उसका slope क्या है x-axis, that is 0. The slope of parallel line are equal, तो उसका भी slope 0 ही रहेगा क्योंकि ये पैरेलल है. अगर x एक्सिस का स्लोप 0 है तो ये पैरेलल लाइन का स्लोप भी 0 ही हो जाएगा. इसलिए 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू 6, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 3. Now we put x is equal to 3 in equation number 1 here, so they gives y, so 3 square minus 6 multiplied by 3 plus 8, so 9 minus 18 plus 8, so they give 17 minus 8. Answer is minus 1. The point is 3 minus 1. Here x is 3 and y is minus 1. We want find the point of the curve y is equal to x square minus 6 x plus 8. So their point is a 3 minus 1. So in this way we can find the point. Now next we are studying find a maxima and minima value. So let's start maxima and minima value. You know that how to find maxima and minima. So is equal to f of x is a continuous function in the domain shown in a figure 3.3. So these, so the first case f dash of x change sign from positive to negative, change sign positive to negative at x is equal to a. F dash of x is greater than 0 from a x is less than a, and f dash of x is less than 0, so x is greater than a. Then f of x is a local maxima value at x is equal to a. Here this curve is a maxima, local maxima, and this curve, so they call as a local minima. क्योंकि ये हाइट ज़्यादा है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे मैक्सिमा, और ये हाइट कम है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे लोकल मिनिमा. क्योंकि ये ऐसा कर्व करता है इसलिए हम उसको मिनिमा बोलेंगे, और इन दिस वे सो वी कैन कॉल एज अ मैक्सिमा. नाउ इन द सेकेंड केस इफ एफ ऑफ एक्स चेंज साइन फ्रॉम अ निगेटिव टू पॉजिटिव. अपन ऊपर हमने क्या देखा था मैक्सिमम में positive to negative. Now here negative to positive, x is equal to a. Here f dash of x is greater than 0 for x is less than a, and f dash of x is greater than 0 for x is greater than a. Then f of x is the local minimum value at x is equal to a, shown in a figure b in this way. So जब हम लोकल मैक्सिमा फाइंड करते हैं तो हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर अ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. उसके लिए हम फर्स्ट क्या है एट एक्स इज इक्वल टू ए और एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0. सो एफ डबल डैश ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0. कंडीशन क्या है हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, वेयर जब हम एक्स में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि एफ डैश ऑफ ए 0 हो सकती है, वो हम एक्स की वैल्यू लेंगे
बाद में देखेंगे कि एफ डबल डैश मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या देखेंगे, एक्स ऑफ ए हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि वो उनकी वैल्यू 0 आ जाए। देन हम एफ डबल डैश ऑफ ए मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए इज़ लेस देन 0 मीन्स वो 0 से छोटा रहेगा। देन एफ ऑफ एक्स हैज़ अ लोकल मैक्सिमा, अगर वो 0 से छोटा रहेगा तो वो मैक्सिमा। देन सेकेंड, अगर x is equal to a if f dash of a is 0, here also same condition, जब हम x की जगह a पुट करते हैं मीन्स कुछ वैल्यू, तब हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। देन सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो वो f ऑफ x इज अ लोकल मिनिमा एट पॉइंट। ओके, सो अगर वो बड़ा रहेगा 0 से मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव तो वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। और ये फॉर्मूले वी आर ऑलरेडी लर्न इन अ सेमिस्टर 1। This is the volume of the cube, then surface area of the cube, then volume surface, then surface area of a sphere of radius. Now this is also volume. So ये हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये कोन के लिए, देन ये सर्कुलर सिलेंडर के लिए, ये ऑलरेडी लर्न। Now take one example for finding maxima and minima. Here they give find a maxima and minima value of x cube minus 12x minus 5. So here f of x given means y is equal to f of x is equal to x cube minus 12x minus 5, so called as equation number 1. Now differentiating with respect to x, तो हमको मालूम है फर्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन उसकी वैल्यू 0 होती है कि वो चेक करेंगे, देन फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स हमको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। सो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, वो एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 12। ईयर 3x स्क्वायर मीन्स क्या है, वो एन एक्स एन माइनस 1, सो एन क्या है 3 है, सो 3x 3 माइनस 1 मीन्स 2, सो 3x स्क्वायर माइनस 12। ना हम इधर 3 कॉमन निकालने के बाद हमको आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेगा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी। सो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये भी इक्वेशन नंबर 2, दोनों भी सेम ही है, सिर्फ हमने ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया इस तरीके से। क्यों सिंप्लीफाई किया, क्योंकि हमको x इज इक्वल टू ऐसा कुछ पुट करना है कि ये पूरी वैल्यू 0 हो सकती है। तो इधर हम क्या पुट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे, सो होल इज 0, एंड x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। सो फॉर अ मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमको 2 वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 2 मीन्स a मिल गया हमको, या तो वो मीन्स a क्या है माइनस 2 और a क्या है 2 है। अभी हमको वो किस में चेक करना है, सेकेंड डेरिवेटिव में। सो नाउ फाइंडिंग द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन नंबर 2 मीन्स इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, सो दे गिव 6x, सो वो क्या होगा 6x, देन वी पुट एट x is equal to minus 2, first we take minus 2, so at x is equal to minus 2 from equation number 3 here, so d square y by dx means f double dash of x means ये f double dash of x, here x is equal to minus 2, तो इधर हम x की जगह minus 2 पुट करेंगे, so this is minus 2, here less than 0 means वो क्या हो गया maximum हो गया, less than 0 means वो देखिए maximum value, so x is equal to minus 2, certainly given maximum value of f y is equal to f of x, we putting x is equal to minus 2 in equation number 1, we put now equation number 1, so they gives 11, so the point of the maximum is minus to 11, so हमने maximum point find किया, वो क्या है minus to 11, now we put 2, so at x is equal to 2 in equation number 3 here, so 2 multiply by 6 multiply by 2 that is 12, जो 12 है और उधर माइनस 12 था, माइनस 12 इज लेस देन 0 एंड प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0, so x is equal to 2,
certainly given minimum value of y is equal to f of x. We know that अगर वो greater than 0 रहेगा, so they give minimum value. So they put x is equal to 2 in equation number 1, so they give minus 21. So the point of the minimum, that is 2 minus 21. Maximum point is minus 211 and minimum point is 2 minus 21. So in this way we can find the maximum and minimum values. And in this lecture, in this unit also we are studied radius. We are finding the radius curvature, then also study formula of curvature. Let's start. We know that the curve having a positive curvature is called as a concave upward, means upward रहेगा वो concave upward, and those with negative curvature are concave downward, वो downward. So first ये सब डेरिवेशन मीन्स डेरिवेशन हमने देखा और हमको एक फॉर्मूला मिला, दैट इज k इज इक्वल टू d थीटा बाई डी एस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर एंड ब्रैकेट स्क्वेयर इज 3 डिवाइडेड बाई 2. सो ये फॉर्मूला है हमारा कर्वेचर फाइंड करने के लिए. सो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कर्वेचर इन अ सर्टन फॉर्म. हमको एग्जाम में पूछ सकते हैं फाइंड द curvature of this equation. We use this formula and also find the radius of curvature. ये for curvature के लिए. now radius of curvature के लिए ये formula, that is rho is equal to 1 by k, means 1 by k means ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. means फर्स्ट ये लिखेंगे ये डिवाइडेड बाय ये. ओके, सो ये किसके लिए है, फॉर कर्वेचर के लिए, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, फॉर finding curvature and rho is the radius of curvature. So take first example. Find the curvature at 3 minus 4 to the curve x square y square is equal to 25. Now here देखो find one, sorry, here they say to find curvature. So curvature के लिए कौन सा फॉर्मूला है, that is k d square y by dx square divided by 1 plus dy by dx whole square and the bracket square is 3 divided by 2. so use this formula. so the given first उसके लिए डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव ऑल्सो. सो वो फर्स्ट फाइंड करेंगे. so differentiating with respect to x, so they give 2x plus 2y dy by dx is equal to 0. y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy by dx, देन दिस इज द 25 कांस्टेंट, सो आंसर इज 0. नो दिस इज 2x इज अ पॉजिटिव, सो अपोजिट साइड, सो दे टेक अ माइनस साइन, और ये हियर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा. सो 2x डिवाइडेड बाई 2y, सो 2 गेट कैंसल, सो माइनस x डिवाइडेड बाई y, एंड हियर दे गिव 1 पॉइंट एट अ 3 minus 4. so here 3 is the x and 4 is the y. so minus 3 divided by minus 4, here minus 4, so minus minus cancel, so dy by dx means for derivation का आंसर आया 3 divided by 4. now again differentiating equation 2 with respect to x, इसको differentiate करेंगे तो dy by dx means d square y by dx square, so they use y 1 minus x divided by dx and y square. Here we use u divided by v rule. so first v means denominator लेंगे, then numerator का differentiation, then numerator और denominator का differentiation, then denominator का square. so वो यूज़ करने के बाद हमको आंसर मिला. then again we put the value x and y, that is 3 minus 4, so they use 25 divided by 64. now we put the value of here 25 divided by 64, double derivative means 2 times derivative and first derivative, that is 3 by 4. so we put here 3 by 4 means we put in this way,
then we can solve easily. So they gives answer 1/5. The curvature of the given curve at a 3 minus 4 is a 1/5. Now इधर हमने कर्वेचर फाइंड किया, दैट इज 1/5. नाउ हियर फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. अभी हम इधर क्या फाइंड करना है, हमको रेडियस फाइंड करनी है. सो रेडियस ऑफ द कर्वेचर मीन्स ये फॉर्मूला है उसको उल्टा कर देंगे, मीन्स रो इज इक्वल टू 1/k. सो सेम फर्स्ट हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन पॉइंट पुट करेंगे एक्स एंड वाई, देन अगेन सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन वैल्यू पुट करेंगे मीन्स एक्स एंड वाई, देन वो वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमको रेडियस की वैल्यू मिलेगी. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dy by dx एट 1 1. सो दे गिव 1 मीन्स आंसर इज 3. सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज 3, देन अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 with respect to x, so they gives 6x. here 2 multiply करेगा that is 6, then x, so 6x, then answer is 1 1, so only 6. so here first derivative answer is 3 and second derivative is 6. so rho is equal to 1/k means 1 plus dy by dx whole square, then 3/2, then d square y by dx square. so here mathematically calculate part, so they gives 5.27 यूनिट. सो रेडियस क्या है हमारी 5.27 यूनिट. सो ये सारे हमने फॉर्मूले लर्न किए यूनिट 1 में. तो आज ये सारे के सारे फॉर्मूले लर्न कर दो. इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमको कर्वेचर का फॉर्मूला हमने बाहर किया. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे कि रो इज इक्वल टू 1/k मीन्स उसका उल्टा. सो ईजी है, मीन्स एक फार्मूला बाहर करना है बस, बाद में दूसरा आपको ईजिली आ जाएगा. और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमको क्या करना है, जो इक्वेशन दी है उसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद उस एक्स इज इक्वल टू हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं तो 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा वैल्यू 0 आ जाए. मीन्स हम उसके ऊपर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि उसकी वैल्यू 0 आ सकती है. तो वो निकालेंगे, देन हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसकी जो वैल्यू है एक्स की हमने निकाली मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए इज़ अ क्वेश्चन मार्क मीन्स हम जो फाइंड करने वाले वो हम वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे. बाद में उसका आंसर क्या आता है वो देखेंगे. अगर उसका आंसर लेस देन 0 आ गया मीन्स 0 से छोटा आ गया, मीन्स 0 से छोटा मीन्स वो निगेटिव में आ गया तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, और बड़ा आ गया तो वो मिनिमम हो गया. So in this way we can find a maximum, minima and radius of curvature and curvature. So here our first unit is completed. Now next lecture we will start the second unit.